لبیں آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع. عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اردو قواعد سے جو کہ یہ ہمارا سبق نمبر 14 ہے، آج ہم سیکھیں گے فعل مثبت کیا ہے، یا فعل مثبت کسے کہتے ہیں، فعل منفی کیا ہے، اور متکلم کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں، غائب کسے کہتے ہیں، صیغہ کسے کہتے ہیں، فعل امر کیا ہے اور فعل نہیں کیا ہے. ان تمام کے تعلق سے آج ہم مکمل طور پر معلومات حاصل کریں گے. آپ ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے کہ یہ تمام تعریفیں کیا ہیں اور ان کی مثالیں کیا ہے. اور اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ تمام کے لیے یہاں پر جانچ کے طور پر چند سوالات پیش کریں گے. آپ ضرور ان سوالات کے جوابات دیں اور اپنی جانچ آپ کریں. تو چلیے آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے فعل مثبت کیا ہے دیکھیں گے. فعل مثبت کی تعریف اس طرح ہے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا ثابت ہو فعل مثبت کہلاتا ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کا ہونا ثابت ہو فعل مثبت کہلاتا ہے. مثلا دیکھیے رؤف نے دیکھا، یہاں پر دیکھنا کام ہوا ہے اس لیے یہ فعل مثبت ہے، رؤف نے دیکھا. چلیے دوسری مثال دیکھتے ہیں. احمد گھر آیا، یہاں پر گھر آنا کام ہوا ہے احمد کا اس لیے یہ فعل مثبت ہے. اب ہم دیکھیں گے فعل منفی کی تعریف کیا ہے. فعل منفی کسے کہتے ہیں؟ وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا ثابت ہو فعل منفی کہلاتا ہے. وہ فعل جس میں کسی کام کا نہ ہونا ثابت ہو فعل منفی کہلاتا ہے. مثلا مثال کے طور پر یہاں دیکھیں گے رؤف نے نہیں دیکھا، رؤف نے نہیں دیکھا، یہاں پر کام نہیں ہوا ہے اس لیے یہ فعل منفی ہے. دوسری مثال اب ہم دیکھیں گے متکلم کسے کہتے ہیں. متکلم کسے کہتے ہیں؟ بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. بات کرنے والے کو متکلم کہتے ہیں. جیسے میں یا ہم، بات کرنے والا یا تو میں ہو سکتا ہوں یا ہم ہو سکتے ہیں تو اسے متکلم کہتے ہیں. حاضر، اب دیکھیں گے حاضر کی تعریف کیا ہے. سامنے موجود شخص کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں. سامنے موجود شخص کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں، یعنی جس سے بات کی جا رہی ہے اسے حاضر کہتے ہیں. سامنے موجود شخص کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں. جیسے حاضر شخص کو ہم تم یا آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے حاضر میں ہم لکھ سکتے ہیں تم یا آپ. سامنے موجود شخص کو مخاطب یا حاضر کہتے ہیں جیسے تم یا آپ. اب ہم دیکھیں گے غائب کسے کہتے ہیں. غائب کی تعریف کیا ہے؟ دوران گفتگو موجود نہ ہو ایسے اسے غائب کہتے ہیں. دوران گفتگو موجود نہ ہو اسے غائب کہتے ہیں، یعنی جو دوران گفتگو نہیں ہوتے ہیں بات چیت کے دوران جن کے بارے میں بات کی جاتی ہے اسے ہم غائب کہتے ہیں. جیسے وہ، ان، انہوں. جیسے یہاں پر وہ، ان، انہوں یہ تمام الفاظ جو شخص موجود نہ ہو اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہم دیکھیں گے صیغہ کسے کہتے ہیں. صیغہ متکلم، حاضر، غائب کی واحد جمع کے اعتبار سے تقسیم کو صیغہ کہتے ہیں. متکلم، حاضر، غائب کی واحد جمع کے اعتبار سے تقسیم کو صیغہ کہتے ہیں. جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ متکلم کسے کہتے ہیں، حاضر کسے کہتے ہیں اور غائب کسے کہتے ہیں. اب اس میں اگر شخص واحد ہو تو اسے کس طریقے سے لکھنا چاہیے اور جمع کے لیے کس طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے. متکلم میں اور حاضر میں اور غائب میں اسی کو صیغہ کہا جاتا ہے. چلیے اب ہم یہاں پر ایک جدول کے ذریعے یہاں پر معلومات حاصل کرتے ہیں. صیغہ متکلم، حاضر، غائب. متکلم واحد میں میں ہوں
तो जमा में होगा हम या हम सब कह सकते हैं, हम या हम सब। इसी तरीके से सेगा हाजिर में वाहिद के लिए तुम या आप कह सकते हैं, तुम या आप ये वाहिद के लिए है, तो इसकी जमा होगी तुम सब या आप सब, तुम सब या आप सब। इसी तरीके से गायब में होगा वो या उन, तो इसकी जमा होगी वो सब या उन सब। सेगा अगर वाहिद हो तो इस तरीके से मैं, तुम, आप, मैं मुतकल्लिम में होगा तो हाजिर में तुम या आप होगा, और गायब में होगा वो उन। ये है वाहिद सेगा। और जमा का सेगा है मुतकल्लिम में हम सब, और हाजिर में है तुम सब या आप सब, और गायब में है वो सब या उन सब। इस तरीके से ये सेगा, मुतकल्लिम, हाजिर और गायब, वाहिद, जमा का आपको याद रखना होगा। अब हम देखेंगे इस्तेमाल का तरीका। अभी हमने सेगे के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल की है। अब हम सेगे के इस्तेमाल का तरीका देखेंगे। लफ्ज सेगा, यहाँ पर इस तरीके से एक जिदवल मौजूद है। लफ्ज अगर तुम या आप हो तो ये होगा तुम और आप। सेगा है वाहिद हाजिर, तुम और आप लफ्ज जो है वो वाहिद हाजिर होगा। इसी तरीके से तुम सब या आप सब, ये जमा हाजिर के लिए है। तुम सब और आप सब का सेगा है जमा हाजिर। इसी तरीके से लफ्ज वो उन, इसका सेगा है वाहिद गायब, वो और उन, ये वाहिद गायब का सेगा है। इसी तरीके से लफ्ज वो सब, ये है जमा गायब, जमा यानी वो सब लोग, मतलब जो गायब होते हैं, ये जमा गायब कहलाता है। चलिए और देखेंगे वाहिद और जमा। यहाँ पर वाहिद जमा के हिसाब से सेगा मैं आया, ये वाहिद मुतकल्लिम है, क्योंकि मैं आया एक वाहिद, ये मुतकल्लिम है, मैं यहाँ पर बात करने वाला है। तुम आए यानी ये वाहिद हाजिर है, जो मौजूद है शख्स, तुम से वाहिद हाजिर कहा जाता है। वो आया वाहिद गायब, यानी जो शख्स मौजूद ना हो वो, और ये वाहिद गायब है, वो आया। अब हम देखेंगे जमा मुतकल्लिम में हम सब आए, यहाँ पर मैं आया कह सकते हैं, तो जमा में है हम सब आए, ये जमा मुतकल्लिम है। तुम सब आए, ये जमा हाजिर है, तुम सब आए जमा हाजिर। वो लोग आए, ये जमा गायब। इस तरीके से ये वाहिद और जमा का सेगा था। चलिए अब हम आगे मालूमात हासिल करते हैं। अब हम देखेंगे फेले अमर। फेले अमर की तारीफ क्या है? वो फेल जिसमें किसी को कोई काम करने का हुक्म दिया जाए फेले अमर कहलाता है। वो फेल जिसमें किसी को कोई काम करने का हुक्म दिया जाए फेले अमर कहलाता है। फेले अमर से मुराद है यहाँ पर हुक्म देना काम के लिए, जैसा कि जल्दी जाओ, यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है जल्दी जाओ। दूसरी मिसाल देखेंगे तेज दौड़ो, ये तमाम है फेले अमर की मिसालें। अब हम देखेंगे फेले नहीं। फेले नहीं किसे कहते हैं? फेले नहीं वो फेल जिसके करने से किसी को रोका जाए फेले नहीं कहलाता है। वो फेल जिसके करने से किसी को रोका जाए फेले नहीं कहलाता है। अब हम फेले नहीं की मिसालें देखते हैं। यहाँ पर गुस्सा मत करो, यहाँ पर फेले नहीं में मत का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से गुस्सा मत करो, यहाँ पर रोका जा रहा है, ये फेले नहीं है। दूसरी मिसाल झूठ मत बोलो, ये भी फेले नहीं की मिसाल है। इस तरह ये है फेले अमर और फेले नहीं। अजीज तलबा और तालिबात, अब तक हमने यहाँ पर मुकम्मल मालूमात हासिल की है। अब हम आपकी जांच की जानिब चलते हैं। चलिए यहाँ पर जांच के लिए चंद सवालात पेश किए जाते हैं जो अब तक आपने सीखा है, उसी में से ये जांच के चंद सवालात यहाँ पर मौजूद है। पहला सवाल इस तरह है कि तुम सब पढ़ो में लफ्ज तुम सब का सेगा क्या है? तुम सब पढ़ो में लफ्ज तुम सब का सेगा क्या है? तो जवाब है इसका जमा हाजिर। तुम सब ये जमा हाजिर का सेगा है। तुम सब पढ़ो में लफ्ज तुम सब जमा हाजिर का सेगा है। दूसरा सवाल देखते हैं, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वो लोग कहाँ जा रहे हैं में लफ्ज वो लोग का सेगा क्या है? वो लोग का
सेगा क्या है? तो जवाब क्या है इसका जवाब है जमा गायब, यानी वो लोग कहा जा रहा है इसलिए ये यहाँ पर एक से ज्यादा लोग है और वो है इसलिए जमा गायब का सेगा है। चलिए तीसरा सवाल देखेंगे अब हम यहाँ पर। तीसरा सवाल इस तरह है कि बात करने वाले को क्या कहा जाता है? बात करने वाले को क्या कहा जाता है? बात करने वाले को जवाब है उसका मुतकल्लिम कहा जाता है। बात करने वाले को मुतकल्लिम कहा जाता है। चौथा सवाल देखेंगे, हामिद रोजाना पढ़ता है का मनफी जुमला होगा। हामिद रोजाना पढ़ता है का मनफी जुमला क्या होगा? हामिद रोजाना नहीं पढ़ता है। हामिद रोजाना नहीं पढ़ता है, यहां पर नहीं लगाना होगा, ये होगा मनफी जुमला। अब हम पांचवा सवाल देखते हैं, शादा लिखती है का फेले नहीं बनाइए। बनाने पर जुमला क्या होगा? शादा लिखती है का फेले नहीं, यानी शादा यहां पर होगा जवाब शादा मत लिखो, यानी इसे रोका जा रहा है यहाँ पर, शादा मत लिखो, ये है यहाँ पर फेले नहीं, यानी काम से रोका जा रहा है यहाँ पर, इसलिए ये फेले नहीं है। और ये यहाँ पर मनफी जुमला है तो ये फेले नहीं है, इसमें मत का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हमने आज मुकम्मल मालूमात हासिल की है उर्दू के खवाए से। आप जरूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि इसमें तमाम का फायदा हो। अल्लाह हाफिज।